Hello students, we are on chapter number 5, physical and chemical changes. We have completed the physical changes and also done the chemical changes. Today we will do the chemical reactions. Okay, so chemical reaction. Chemical reaction in which जिसमें क्या होती है रिएक्शंस होती है मींस कुछ हमारे लाइक रिएक्टेंट्स एड अप होके प्रोडक्ट बनाते हैं. वन साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग द प्रोडक्ट्स. फाइन. सो वी डू द केमिकल रिएक्शंस फॉर वेरियस रीजंस, बट there are many types of chemical reactions are there, like the addition, or you can say the combination reaction, the decomposition reaction, or displacement reaction, double displacement reactions. So these are such type of reactions are there. Neutralization reactions. So we will do all these types of reaction one by one. Fine. So our first type is the combination reaction, or we can say the direct combination. Direct combination. Direct combination. Direct combination reactions. So direct combination reactions, if we take, let us take some examples of these reactions. Let us take the first, hydrogen and chlorine. Hydrogen, chlorine. Right? I have taken these two elements. Okay. Now direct combination, अब ये directly एक दूसरे से combine होंगे. हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑब्वियसली दोनों को एड अप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl. राइट. यहाँ पर हमारे पास इसके कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ गए. राइट. ये क्लोरीन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स आ गए. और यहाँ पर कितने हैं? 1 and 1. सो हमें इसको बैलेंस करना भी जरूरी है. राइट. क्यों? क्योंकि हमारे जितने रिएक्टेंट होते हैं बच्चे, जितने हमारा मास होता है रिएक्टेंट का, उतना ही मास हमारा किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का. सो इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. फॉर बैलेंसिंग पर्पस आई हैव रिटन 2 ओवर हियर. यानी कि अब क्या हो गया? 2 अगर हम ये आगे की तरफ लिखते हैं तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी कि 2 विल गेट मल्टीप्लाई विद द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये क्या है? 1. राइट. सो 2 into 1 1 atom, 2 into 1 is 2, यानी कि 2 atoms of hydrogens are there and 2 atoms of chlorine are there. So this is called a direct combination in which 2 elements, 2 or more elements react with each other to form a compound. अभी क्या बन गया? कंपाउंड. पहले ये क्या थे? एलिमेंट्स थे, प्योर एलिमेंट्स. हाइड्रोजन है तो सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कोई एटम नहीं है. राइट. And if a chloride is there, then it contains only the atoms of chlorine, right? So when they get added, तो क्या बन गया? compound. क्योंकि compound क्या होता है? Compound is not a pure. It contains various type of elements in it. So अब ये compound है. क्यों है ये compound? Because it contains some atoms of hydrogen and some atoms of chlorine. Fine. So this is called the direct combination. Let us take some more examples here. For magnesium and oxygen. See, when we add magnesium with oxygen, what will happen? क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. राइट. अब हम इसकी बैलेंसिंग देखते हैं. सी, ऑक्सीजन कितने एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स आर देयर एंड हियर 1 एटम इज देयर ओनली. हियर मैग्नीशियम, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 1. हियर 1 इज देयर. सो ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड. ऑक्सीजन एटम्स क्या नहीं है? बैलेंस्ड नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 2 एटम्स आर देयर, सो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेगा. ओके. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, बट साइड बाय साइड यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो गए हैं? सी, 2. क्योंकि 2 जो है वो मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा. राइट. 2 will get multiplied here also and here also.
So 2 atoms of oxygen are there, but only but magnesium के भी atoms कितने हो गए हैं? 2. But here how many atoms are there? Only 1. So we have to multiply it by 2. Now it is a balanced reaction in which magnesium combined with oxygen and we get a compound that is the magnesium oxide. Let us take some more examples over here. Carbon. If I add direct combined, मैं क्या कर रही हूँ? Direct combine कर रही हूँ उसको. So carbon मैंने लिया and I am adding it with the oxygen. इसकी reaction करा दी है मैंने oxygen के साथ. तो product area में क्या होगा? Carbon dioxide. That is the carbon O2. Now see, carbon one atom is there. Here also one atom is there. Oxygen two atoms are there, and here also two atoms are there. So it is completely balanced. So ये क्या है? Completely balanced है. हमें कुछ भी अब इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. So it is directly balanced. Fine. So this is the reaction called the direct combination. Similarly, if I take sulfur and I combine it with the oxygen, then what will happen? Sulfur dioxide. Sulfur dioxide. डायरेक्ट कंबाइन हो गया. सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2. एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड. ओके, नाउ दिस इज our first type of reaction, that is the direct combination. Now we will do the second type of reaction, that is the decomposition reaction. Decompose हो जाना, अपने नेम से ही एक बता रहा है आपको. डिकम्पोज हो जाना यानी कि स्प्लिट अप हो जाना, डिवाइड हो जाना, राइट, ब्रेक डाउन हो जाना. सो आवर सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Sorry, decomposition reaction. Okay, now in decomposition reaction what will happen here? आपका जो कंपाउंड होगा it will start splitting up. जो कंपाउंड है वो स्प्लिट अप हो जाएगा. इवन या तो एलिमेंट्स में स्प्लिट अप हो जाएगा या फिर दूसरे कंपाउंड्स में स्प्लिट अप हो जाएगा. सो इट्स रिएक्शन विल बी लाइक दिस. When one substance break down into two or more substances, जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है आपका वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इन two or more substances, that type of reaction is called the decomposition reaction. Let I explain you with one reaction. So let us take an example of HGO. इसको हम क्या बोलते हैं? Hg is a symbol of mercury and O is added with it. then ये क्या है? Mercuric oxide. What is this? Mercuric oxide. So अब decomposition reaction में क्या होगा? See, two elements are present here. दो elements इसके पास. The one is the mercury and the second one is the oxygen. अब हम इसको डिकम्पोज यानी कि स्प्लिट कर देंगे, इसको ब्रेकअप कर देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? मरकरी अलग से आ जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग से आ जाएगा. सेम सी Hg एंड ऑक्सीजन हमेशा किस में होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, राइट. सो O2 स्प्लिट अप हो गया, मैग्नीशियम सॉरी मरकरी एंड ऑक्सीजन. बट अगर हम इसको देखें क्या ये बैलेंस्ड है रिएक्शन? लेट्स चेक इट आउट. ऑक्सीजन हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2. हियर 1 इज देयर. Here mercury 1 is there. Mercury is balanced but oxygen is not balanced, right? So oxygen को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? 2. So I have multiplied 2 here. But जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को 2 से, मरकरी के भी एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? I mean मरकरी के एटम्स कितने हो गए यहाँ पर? 2 and here 1. So मरकरी को भी 2 बनाना पड़ेगा. Again I have multiplied 2. And this complete reaction is called balance, and this is called the decomposition reaction, in which one substance, see this is a one substance, it splits into two or more substances. This is the reaction of decomposition reaction. Let us take one more example, the CaCO3, calcium carbonate, right? Calcium carbonate.
अब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, what will happen here, two elements are there in this compound. The first one is the calcium and the carbon is also there and the oxygen is also there. कि three elements are there. जब हम इसके decomposition reaction करते हैं, it's again split into 2 or 3 compounds, or you can say 2 or 3 substances. So what will happen here? Calcium will be like this and CO2 carbon dioxide जो है वो release हो जाएगी, right? अगेन ये क्या हो गई है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक इफ वाटर. वाटर का कंपाउंड हमने ले लिया. वाटर का लाइक फॉर्मूला क्या होता है, H2O. हमने जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट अप हो गए. सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे गेट स्प्लिटेड अप. अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. सो बैलेंसिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई राइट 2 here. See, it is completely balanced now. Right? Now see how many elements, I mean how many atoms of hydrogens are there here. 2 multiplied by 2, 4. Here 2 multiplied by 2, 4. Hydrogens are balanced. Let us see about the oxygen. 1 is here. जब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे तो हम क्या estimate करेंगे, उसको 1 लेकर चलेंगे. So 2 multiplied by 1, 2. And here 2. मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, सी 2. ऑक्सीजन आर 2 here and oxygen on the product side 2. So this is called a decomposition reaction in which a one substance splits up into 2 or 3 or more substances, right? So this is called a decomposition reaction. Now displacement reaction. What is displacement reaction? Our third type of reaction is the displacement reaction. Displacement reaction. Displacement means displace कर देना, right? यानी कि see, this book is kept over here. ये बुक की जगह है, right? और मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटाकर यहाँ पर मार्कर को रख दिया. तो मैंने क्या किया, इसकी जगह को डिस्प्लेस करके दूसरा एलिमेंट यहाँ पर रख दिया. सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर मार्कर और बुक की जगह अगर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं तो क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद आ जाएगा वहां पर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट किसी की भी जगह ले लेगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल. वही एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट? सो आई एम राइटिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ सब एलिमेंट्स इन द हायर क्लासेस. आपको एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल होगा वहां पर, इन विच योर ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी. उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो वहां पर एडजस्ट हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग. सो देयर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर फिक्स्ड है. सो आपको स्लोली वो हायर क्लासेस में आप वो रिवाइज करोगे. बट फॉर दिस क्लास आई एम राइटिंग अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्स. वही सिर्फ आप लर्न कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर यू, राइट? सो आई एम राइटिंग ओवर हियर द फर्स्ट वन इज द पोटेशियम. आई एम राइटिंग अ सिंबल ओनली, पोटेशियम. और ओके, सो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, राइट? सेकेंड वन इज द सोडियम. सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम, राइट? द थर्ड वन इज द कैल्शियम. थर्ड वन इज द कैल्शियम. द फोर्थ वन इज द मैग्नीशियम.
एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, देन टिन, टिन सिंबल इज Sn, देन लेड Pb, आफ्टर दैट हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, फिर आता है आपका Ag इज फॉर सिल्वर, देन आता है गोल्ड Au, देन आता है प्लेटिनम Pt। ओके, ये है इसकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि क्या करेगी, जितना हम ऊपर होगा सब्सटेंस उतना ही क्या होगा, मोर रिएक्टिव। सी, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यानी कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव अगर हम देखें तो कौन सा होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसीलिए जो हम ये जो ज्वेलरी पहनते हैं वो हम गोल्ड, सिल्वर और इसकी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम एयर के अंदर घूमते रहे, हमें स्वेटिंग आती रहे, तो ये रिएक्टिव नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी कॉरोजन नहीं होते हैं, ये मेटल कॉरोडेड नहीं होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, राइट। So before starting this displacement reaction, I have to make you familiar with these such elements according to its reactivity. So I am taking an example over here, right? Iron को मैंने add up करा दिया किससे, copper sulfate से। Then what will happen? I am writing over here silver, gold, platinum. Okay, so now what will happen? आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दिया। अब देखो आयरन और कॉपर को कहाँ है, कॉपर इज हियर, आयरन इज हियर। यानी कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह को ले लेगा। सी, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये डिस्प्लेस कर देगा तो ये अभी तो कॉपर सल्फेट है, बाद में क्या हो जाएगा, आयरन का सल्फेट बन जाएगा। सी व्हाट विल हैपन हियर, इट विल बिकम द आयरन सल्फेट प्लस, अब क्या, पहले आयरन अकेला था, अब कौन अकेला रह गया, कॉपर। सी व्हाट विल हैपन, हुआ क्या है यहाँ पर, एक्चुअली जो आयरन है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। क्यों कर दिया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। सो आई होप इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई आयरन एक्चुअली डिस्प्लेसेस कॉपर, राइट। सो वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स हियर। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग द कॉपर विद द सिल्वर नाइट्रेट। सी, आई एम टेकिंग कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का कंपाउंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, राइट, AgNO3। Now see what happened. कॉपर, यहाँ पर एलिमेंट्स देखो कौन से हैं, कॉपर एंड सिल्वर। अब कॉपर एंड सिल्वर को रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम देखें, सी हियर इज कॉपर, और इससे नीचे जाके क्या आएगा हमारा सिल्वर। सो अकॉर्डिंग टू इट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर खुद चला जाएगा, राइट। सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। व्हाट हैपन हियर, कॉपर नाइट्रेट क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर विल लेफ्ट बिहाइंड। सिल्वर क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट। More reactions I am taking here. Next example is of the calcium with zinc oxide. Now see, here is the calcium. Calcium यहाँ है reactivity series में, and where is the zinc? Copper. Copper के ही पास में क्या होता है, zinc आता है हमारा, right? So see, which one is more reactive? Calcium is more reactive. So क्या करेगा, calcium जो है displace कर देगा किसको, zinc को। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड, न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड हियर, दैट विल बी द कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक विल लेफ्ट बिहाइंड,
जिंक जो है बेचारा अलग से रह जाएगा। क्यों? बिकॉज जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कैल्शियम। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इसी के साथ एक टॉपिक है, सब टॉपिक है उसका, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक कंपाउंड है, अनदर कंपाउंड इज देयर, इस कंपाउंड का एक एलिमेंट इसकी जगह पर आ जाएगा और इस कंपाउंड का एक एलिमेंट इसकी जगह पर आ जाएगा, दोनों ही अपनी सीट को चेंज कर देंगे। लाइक दिस, सी वन बेंच इज देयर, एक बेंच है एंड दिस देन अनदर बेंच। यहाँ पर ए स्टूडेंट बैठा है, हियर बी स्टूडेंट इज सिटिंग, राइट? हियर सी स्टूडेंट इज सिटिंग, हियर डी स्टूडेंट इज सिटिंग। अब इन दोनों की आपस में फाइट हो गई है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। इन दोनों की आपस में फाइट हो गई है, इन दोनों की आपस में फाइट हो गई है, राइट? दोनों ही टीचर के पास चले गए, 4 स्टूडेंट्स, कि मैम मुझे इसके साथ नहीं बैठना। तो टीचर ने क्या किया, इस ए की सीट को सी के साथ रख दिया और बी की सीट को डी के साथ रख दिया, राइट? तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो दोनों ही सीट्स हैं उसके दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। दोनों में से एक एक एलिमेंट चेंज कर दिया और काम बन गया। अब उसकी उससे फाइट नहीं हो रही, उसकी उससे फाइट नहीं होगी, दे स्टेबल हो गए। सिमिलरली अब हम ऐसे ही कंपाउंड्स लेंगे, we will take 2 compounds, दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा एंड द सेकेंड एलिमेंट विल टेक द प्लेस ऑफ द फोर्थ एलिमेंट, राइट? सो हियर वी गो। नेक्स्ट इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट। आई एम राइटिंग हियर ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 टाइम्स होगा वहां पर। अब देखते हैं, हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड ऑल्सो अ सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन। दिस सिल्वर, ये सिल्वर यहां पर सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, खुद यहां पर लग जाएगा। खुद यहां पर लग गया तो AgCl बन गया, राइट? क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, सो सी AgCl, राइट? अब इस क्लोरीन ने क्या किया, इसने इसकी जगह ले लिया, ये इसके साथ लग गया आके। सो देख अब क्या बन जाएगा, AgCl बन गया। अब क्या बन जाएगा, NaNO3। What will happen here? NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, राइट? सिल्वर जो है किसके साथ लग गया है, क्लोरीन के साथ, फाइन। और जो यहाँ पर ये सोडियम बच गया था, यहाँ पर ये कौन बच गया था, नाइट्रेट बच गया था। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करा ली एंड दे फॉर्म द सोडियम नाइट्रेट। दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एनायन और कैटायन, हम यहाँ पर एक वर्ड आ गया इसके अंदर, एनायन और कैटायन मीन्स एक एनायन दो है, इसके कैटायन के साथ रिएक्ट कर देगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्शन करा लेगा, राइट? सो कैटायन और एनायन, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है। मैंने आपको न्यू वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली जब आयंस आ जाते हैं, यानी कि किसी एलिमेंट के ऊपर कोई साइन आ जाता है, राइट? अगर वो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव साइन आ जाता है, एक क्या आ जाता है, नेगेटिव। यानी कि Ag के ऊपर आता है पॉजिटिव साइन और NO3 के ऊपर आता है नेगेटिव साइन। तो ये क्या है, कैटायन एंड एनायन, ठीक है? और यहाँ पर सोडियम के ऊपर आ जाता है क्या, पॉजिटिव साइन, और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव साइन, राइट? सो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव रिएक्ट करा देता है इस Cl के साथ, नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो ऐसी रिएक्शन बनी है, चेक करें, देखो AgCl NaNO3, राइट? सो एक्चुअली में जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटायन और एनायन के बीच में होती है। अब कितना साइन उसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 + 1 + 3 + 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ये कब आता है, किस कंडीशन में आता है, और कितने कैटायन और कितने एनायन उसके ऊपर, मीन्स
अमाउंट ऑफ चार्ज उसके ऊपर कितना डेवलप होगा, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन द केमिस्ट्री। फाइन, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कैटायन जो है एनायन के साथ रिएक्ट कराते हैं हमेशा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड दे विल फॉर्म द टू डिफरेंट कंपाउंड्स। दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर के अंदर वी हैव डन व्हाट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े थे। तो उसी से रिएक्टेड हमारा होगा यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारा, एसिड ऑलवेज एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। वी विल टेक वन एसिड एंड वी विल रिएक्ट इट विद बेस, और हमेशा क्या बनाएगा, वाटर। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, तो हमेशा वो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक वन एसिड दैट इज द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी विल टेक वन बेस ओवर हियर दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब वाटर बनाएगा, ये हमें पता है वाटर बनाएगा, तो हम वाटर को पहले ही निकाल देते हैं यहाँ पर, H2O, यानी कि ये और ये चीज निकल चुकी है ना, हाइड्रोजन 2 and 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये फॉर्म हो चुका है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, क्लोरीन इज लेफ्ट एंड सोडियम इज लेफ्ट, और दोनों ही आपस में मिलाकर क्या बना देंगे, NaCl, और NaCl क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है ना सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं ना, दैट इज द कॉमन सॉल्ट, वही सॉल्ट है ये NaCl। सो सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, hydrochloric acid, and this is the sodium hydroxide, इसने क्या बना लिया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज द वाटर, ये क्या है, वाटर। सी, हम फॉर्मूले को चेक करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, हमेशा एक एसिड होगा, बेस होगा, दे बोथ विल रिएक्ट एंड दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। लेट अस सी, वही बनाया नहीं, एसिड, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक इज अ एसिड, बेस, yes, sodium hydroxide is a base. After this reaction, what will happen, let's see, salt is formed or not, NaCl, yes, NaCl is a salt, salt भी बन गया, and also the water, means कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, राइट। सो दिस इज द व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो वी हैव डन द रिएक्शंस पार्ट हियर। क्या क्या कौन सी रिएक्शंस कर ली हमने केमिकल रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, neutralization reaction and decomposition reaction. 5 types of reactions we have done, and I hope it is clear to you. One more thing, hardly 2 topics are left. In our next video I'm going to explain those topics only. So keep on learning and revising the things. ये जो chemical reactions हैं particularly science के अंदर, ये just होती है mathematics की तरह। किसकी तरह होती है ये, मैथ्स की तरह ही होती है आपकी। आपको इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो फॉलो करके ही ये फॉर्म होती है। ऐसे जैसे आपका मैथ्स होता है, आपको एडिशन है तो एडिशन सिंबल इज गिवन, प्लस है तो प्लस ही करना है वहां पर, और वही रूल फॉलो करना है जो ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, कि एडिशन मीन्स ऐसा ही होता है, राइट। 2 + 2 4 ही होता है और वही रहेगा, ठीक है।
चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सिमिलरली जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, वही उसके साथ हमेशा सेम वही यूनिवर्सली ये चीजें मानी जाती हैं कि आप उसको कहीं भी इन चीजों को रिएक्ट कराओगे, इस पर्टिकुलर चीज को इस पर्टिकुलर चीज के साथ रिएक्शन अगर कराओगे तो हमेशा यही चीज बनेगी, ऑलवेज, राइट। सो आपको इसकी जो है आई नो इट इज न्यू टू यू, बहुत सारे वर्ड्स एलिमेंट्स जो हैं आपके लिए बहुत नए आए हैं, बट आपको उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसकी प्रैक्टिस करते रहो। आपको धीरे धीरे, जैसे आप फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स के अंदर, फॉर्मूला नए होते हैं आपके लिए, आपने नए एक्सरसाइज में समझे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड निकालते हो तो फॉर्मूला बार बार लिखते हो तो लर्न हो जाता है। सिमिलरली जब आप ये रिएक्शंस को, इस HCl को बार बार रिएक्शंस के अंदर यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा 10th रिएक्शन में अपने आप ही दैट इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये न्यू लगेगा, बट जैसे ही आप इसके साथ उसको रूटीन में ले आते हो, यूज करते रहो, बस उसको रिएक्शंस लिखते रहो, देन क्या होगा, आपको ये सभी के सभी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको लर्न हो जाएंगे, राइट। सो डोंट बी पैनिक, कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली, you can ask me, and thank you so much for watching this video.